Assalamu alaikum all my lovely students. I hope all of you are doing great, having a good time. Well, my name is Wasim Bhatt and I work as the chemistry expert for IIT and NEET in Kashmir Institute of Excellence. जैसा आप सबको पता होगा कि कुछ गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो अभी रिसेंटली आ चुके हैं, एंड एज पर दोज ऑर्डर्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट हमें कुछ दिनों के लिए ऑफलाइन सिस्टम अपना बंद करना होगा, राइट? But that's absolutely going to be temporary, I must say. और इन दिनों के लिए like it's maximum it's going to be for a week or something. और इस एक हफ्ते जिन दिनों आपके ऑफलाइन क्लासेस बंद रहेंगे तब तक इस ड्यूरेशन के लिए will be starting our online classes and this is going to be your first lecture of your chemistry with me, right? अब exactly हम कौन सा टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं? There were, as you all must be knowing, there were a lot of batches in class 11th, right? कुछ batches ने stoichiometry start करी थी, कुछ batches ने stoichiometry अभी start नहीं करी थी. तो exactly मैं यहाँ पे topic जो start करने वाला हूँ, I'll be starting from the exact basics. मैं यहाँ पे the topic which I'm going to start right now is going to be your stoichiometry. I want you guys to note down the heading as stoichiometry. अब कुछ बैचेस ने ये स्टोइशियोमेट्री ऑलरेडी डिस्कस करी थी, कुछ बैचेस ऐसे थे जिनने स्टोइशियोमेट्री पढ़ी नहीं थी एग्जैक्टली, तो मैं एग्जैक्टली पहले से ही स्टार्ट करूंगा, राइट? फ्रॉम द एग्जैक्ट स्क्रैच, फ्रॉम द एग्जैक्ट बेसिक्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टोइशियोमेट्री में हमें डिस्कस क्या करना है? व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस स्टोइशियोमेट्री? जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी फिक्स द थिंग्स, विल बी स्टार्टिंग, राइट? देखिए, स्टोइशियोमेट्री का मतलब समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, which I'll be frequently using in this concept of stoichiometry, right? Now the point is, what are those basic things? वो basic चीजें हैं क्या? वो basic चीजें समझने से पहले I will be taking a general a chemical reaction. मैं यहाँ पे एक simple सी एक chemical reaction लेने वाला हूं जिससे आपको आइडिया मिलेगा क्या क्या चीजें हमें काम में आने वाली है इस stoichiometry टॉपिक में, right? तो let me take a general chemical reaction. For example, मैं एक reaction ले रहा हूं, N2 gas reacts with H2 gas and it leads to the formation of NH3 gas. For example, ये मैंने एक general chemical reaction ले ली जिसमें N2 H2 के साथ react करके क्या बनाएगा? NH3 बनाएगा, right? First thing, if I ask you, क्या ये reaction balanced है क्या unbalanced? This reaction right now is an unbalanced chemical equation. सबसे पहला काम जो आप स्टोइशियोमेट्री में किया करोगे, यू विल बी बैलेंसिंग द रिएक्शन. जब भी हमें किसी रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्री यूज करनी होगी, स्टोइशियोमेट्री यूज करने के लिए आप सबसे पहले क्या किया करोगे? आप रिएक्शन को पहले बैलेंस किया करोगे. राइट नाउ दिस इज द अनबैलेंस्ड रिएक्शन, तो सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगा, राइट? जब इस रिएक्शन को बैलेंस किया जाएगा, यहां पे 3 टाइम्स आ जाएगा, यहां पे 2 टाइम्स आ जाएगा और यहां पे आगे 1 आएगा, राइट? Now this reaction is a complete balanced chemical equation, right? अब सबसे पहली चीज, जो N2 के सामने ये कांस्टेंट 1 आ गया, H2 के सामने ये कांस्टेंट 3 आ गया, NH3 के सामने ये कांस्टेंट 2 आ गया, इन कांस्टेंट्स को, इस 1, 3 और 2 को, what do we call them as? We call them as the stoichiometric coefficients. We call them as the stoichiometric coefficients. And do remember, इन stoichiometric coefficients को, इस 1, 3 और 2 को, इन stoichiometric coefficients को ट्रीट किया जाता है as moles. We treat these stoichiometric coefficients as moles. Now the point is, how do we treat these stoichiometric coefficients as moles? ध्यान से देखिए exactly what I'm going to say. Understand properly. देखिए, as per the stoichiometric coefficients of this reaction are concerned, I need to treat these stoichiometric coefficients as moles, right? मैं यहां पे एक सिंपल स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, आप समझना इस स्टेटमेंट का मतलब. मैं यहां पे सिंपल लिखूंगा 1 mole of N2 as per the stoichiometric coefficients of the reaction are concerned, right? I can say 1 mole of N2 completely reacts with 3 moles of H2, completely reacts with 3 moles of H2 and produces 2 moles of NH3. Produces 2 moles of NH3.
सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपके पास एक केमिकल रिएक्शन होगी, सबसे पहला काम जो आप क्या करोगे, आप रिएक्शन को पहले बैलेंस करो। बैलेंस करने के बाद जो ये कांस्टेंट्स आ गए 1, 3 और 2, इन कांस्टेंट्स को बोला जाएगा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, और इन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को एग्जैक्टली हम ट्रीट करेंगे एज मोल्स। Now from this balanced chemical equation, from the stoichiometry of the reaction, I got to know exactly 1 mole of N2 ने 3 moles of H2 के साथ रिएक्ट करके 2 moles of NH3 बना लिए, राइट? ये जो डेटा मेरे पास आ गया, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा, ये स्टेटमेंट लिखना तभी पॉसिबल होगा जब रिएक्शन आपके पास बैलेंस्ड फॉर्म में होगी। तो ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा, ये तभी आप लिख पाए जब आपके पास एग्जैक्टली इन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की वैल्यू थी, राइट? अब अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा, क्या ये स्टेटमेंट सिर्फ मैंने मोल्स के टर्म्स में लिखा? एब्सोल्युटली आई रोट दिस स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स। जब भी मैं एक केमिकल रिएक्शन के लिए ऐसा एक स्टेटमेंट लिखूं इन टर्म्स ऑफ मोल्स, आई विल बी कॉलिंग दैट मेथड इन स्टोइशियोमेट्री एज मोल मेथड, राइट? जब भी मैं स्टोइशियोमेट्री में ऐसा एक स्टेटमेंट लिखूं इन टर्म्स ऑफ मोल्स, आई विल बी कॉलिंग दिस मेथड इन स्टोइशियोमेट्री एज द मोल मेथड। पॉइंट नंबर 1। तो जब भी आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन के लिए अगर आपने स्टोइशियोमेट्री यूज करनी है, सबसे पहले आपको यह स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए, और अगर आपने ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा इन टर्म्स ऑफ मोल्स, आई विल बी कॉलिंग दिस मेथड इन स्टोइशियोमेट्री एज द मोल मेथड। पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली व्हाट आई एम गोइंग टू से। आई एम श्योर सबने मोलर मास टर्म तो पढ़ा होगा, राइट? अपने इंडिविजुअल ऑफलाइन क्लासेस में। मोलर मास को इफ यू रिमेंबर कैसे डिफाइन किया जाता है? मोलर मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाट वी कॉल एज मोलर मास। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन होगा, लेट्स से आई गॉट 1 मोल ऑफ कार्बन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया आई गॉट सम 6.022 into 10 raised power 23 atoms of carbon, राइट? ये सबको पता होना चाहिए। लेट्स से आई गॉट 1 मोल ऑफ कार्बन, मतलब क्या है इस चीज का? आई गॉट सम 6.022 into 10 raised power 23 atoms of carbon। जो भी 1 मोल ऑफ कार्बन का मास होगा, या जो भी 6.022 into 10 raised power 23 atoms of कार्बन का मास होगा, दैट्स समथिंग व्हिच वी कॉल एज मोलर मास, राइट? ये सबको पता होना चाहिए, करेक्ट? अब फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्यों मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना आप। अगर आपको फॉर एग्जांपल N2 का मोलर मास कैलकुलेट करना होगा, N2 का मोलर मास किसके बराबर होगा? ध्यान से देखें। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU, सबको पता होना चाहिए। बट क्या मेरे पास एक एटम ऑफ नाइट्रोजन है कि 2 एटम्स? यहां पे 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया? 28, राइट? तो इस N2 का अगर मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना होगा, आई से मोलर मास ऑफ N2 इज 28 ग्राम्स, राइट? अगर आपको पता होगा मोलर मास के यूनिट्स क्या होते हैं? ग्राम्स पर मोल, correct? So I can say this 28 grams, it is the molar mass of N2. This 28 grams, it is the mass of 1 mole of N2, right? क्या मैंने 1 mole of N2 ही यहां पे लिया हुआ है? Absolutely, इस 1 mole of N2 का मास कितना होगा? 28 grams. I'll be writing 28 grams of N2. अब इसके बाद देखें, if I ask you what is the molar mass of H2? H2 का मोलर मास कितना होता है? सिंपल, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 AMU। मल्टीप्लाई किससे करें? 2 से, बिकॉज 2 हाइड्रोजन है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आएगा? 2। अब सिंस मैं मोलर मास टर्म यूज कर रहा हूं, तो यूनिट्स क्या लिखने होंगे? ग्राम्स में। सो आई विल से 2 grams is the molar mass of H2, right? What does that mean? That means 2 grams is the mass of 1 mole of H2, correct? 2 grams is the molar mass of H2, or I can say 2 grams is the mass of 1 mole of H2. But क्या मेरे पास 1 mole of H2 है कि 3 moles of H2? I have got 3 moles of H2, right? अगर 1 मोल ऑफ H2 का मास था 2 ग्राम्स, तो 3 मोल्स ऑफ H2 का मास कितना होगा? डायरेक्टली 6 ग्राम्स। आई विल बी राइटिंग 6 ग्राम्स ऑफ H2, राइट? अब जरा देखें, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस NH3, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14, राइट? हाइड्रोजन का कितना? 1। नाइट्रोजन का होगा 14, और कितने नाइट्रोजन एटम्स है यहां पे? एक नाइट्रोजन एटम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU, कितने हाइड्रोजन? 3। ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे, वैल्यू कितनी मिलेगी? 17। तो ये जो 17 ग्राम्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये 17 ग्राम्स क्या आ गया? ये NH3 का मोलर मास आ गया, ये NH3 के 1 मोल का मास आ गया। बट डू आई हैव
1 मोल ऑफ NH3 के 2 मोल्स ऑफ NH3. I have got exactly 2 moles of NH3. अगर 1 मोल ऑफ NH3 का मास है 17 ग्राम्स, तो 2 मोल्स ऑफ NH3 का मास कितना होगा? 34 ग्राम्स. I will be writing 34 grams of NH3. अब इस स्टेटमेंट को कैसे रीड करा जाएगा? देखिए, इसको रीड किया जाएगा 28 grams of N2 completely reacts with 6 grams of H2 and produces or liberates 34 grams of NH3. अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, क्या मैंने ये स्टेटमेंट सिर्फ लिखा इन टर्म्स ऑफ मास? मैंने हर जगह पे ग्राम्स टर्म यूज करी. सो आई रोट दिस स्टेटमेंट पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ मास. जब भी स्टोइशियोमेट्री में ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ मास, आई बी कॉलिंग दिस मेथड इन स्टोइशियोमेट्री एज द मास मेथड. I'll be calling this method in stoichiometry as the mass method. और अभी के लिए सिर्फ I'm going to deal with the mole method in stoichiometry and mass method in stoichiometry. एक और मेथड होता है volume method, जो अभी मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा. That is something which I'll be discussing in some time. Right? तो first thing, जब भी किसी रिएक्शन में मुझे स्टोइशियोमेट्री यूज करनी होगी, स्टोइशियोमेट्री यूज करने के लिए मुझे सबसे पहले ये दो स्टेटमेंट्स लिखने आने चाहिए. एक स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, दूसरा स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ मास. राइट? जब भी स्टेटमेंट लिखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोल्स, आई विल बी कॉलिंग दिस मेथड इन स्टोइशियोमेट्री एज मोल मेथड. जब भी स्टेटमेंट लिखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ मास, आई विल बी कॉलिंग दिस मेथड एज द मास मेथड. राइट? सिमिलरली एक और रिएक्शन में लेने जा रहा हूं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा पूरा कि कैसे ये दो स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए. लेट मी टेक वन मोर रिएक्शन. जस्ट अ सेकेंड. Let me take one more reaction and let's try to write the same two statements for the another reaction as well, which I'm going to take now. Yeah? देखिए, for example, मैं अब एक रिएक्शन ले रहा हूं जिसमें मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाला है और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है और साथ में वाटर बनने वाला है. Let's say this is a general chemical reaction जो मैंने यहां पे ली. This is a general chemical reaction जिसमें मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. राइट? नाउ अगर मुझे इस रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्री यूज करनी होगी, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच आई एम सपोज्ड टू डू? क्या मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा? एब्सोल्युटली मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना होगा. राइट? और इन पर्टिकुलर रिएक्शंस को बैलेंस करने का एक तरीका होता है जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, बट अभी आई वोंट बी डिस्कसिंग दैट. अभी हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. राइट? देखिए, यहां पे एक कार्बन है, यहां पे एक कार्बन है. सिंस यहां पे 4 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 टाइम्स कर लो. राइट? अब देखिए, यहां पे ऑक्सीजन आ गए 2 और 2 हो गए 4, तो यहां पे 2 टाइम्स कर लो. ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई. नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. राइट? ये बैलेंस हो गई, आप चेक भी कर सकते हो. राइट? यहां का कोएफिशिएंट क्या आ गया? 1. यहां का कोएफिशिएंट कितना है? 2. यहां का कोएफिशिएंट कितना है? 1. और यहां का कोएफिशिएंट कितना है? 2. राइट? और इन कोएफिशिएंट्स को 1 2 1 2, इन कोएफिशिएंट्स को क्या बोला जाएगा? आई विल बी कॉलिंग दीज कोएफिशिएंट्स एज द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. राइट? एंड यू गाइस नो, इन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ट्रीट कैसे किया जाता है? वी ट्रीट दी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एज मोल्स. राइट? अगर आपको ये चीज ऑलरेडी पता है कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ट्रीट किया जाता है एज मोल्स, क्या मैं ऐसा ही एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ मोल्स जैसे मैंने लास्ट वाली रिएक्शन के लिए लिखा? एब्सोल्युटली. I can say something like this. I can say 1 mole of methane. I can say 1 mole of methane completely reacts with 2 moles of oxygen. Completely reacts with 2 moles of oxygen and produces 1 mole of carbon dioxide. And produces 1 mole of carbon dioxide. And at the same time produces 2 moles of water as well. Simple सा statement मैंने लिखा. Right? ध्यान से देखिए, मैंने सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करा, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया जब भी रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्री यूज की जाएगी सबसे पहला काम होगा रिएक्शन को बैलेंस करना. राइट? नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है उनको ट्रीट कैसे करें? लाइक मोल्स. आई कैन से समथिंग लाइक दिस. 1 मोल ऑफ मीथेन completely reacts with 2 moles of oxygen and produces 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. ध्यान से देखिए, क्या मैंने स्टेटमेंट सिर्फ यहां पे इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिखा? Absolutely, I wrote the statement in terms of moles. Right? So should I be calling this method in stoichiometry as the mole method? Absolutely, I'll be calling this method in stoichiometry as mole method. जब भी stoichiometry में ऐसा एक statement लिखा जाए particularly in terms of moles, I'll be calling this method in stoichiometry as the mole method. Right? Now, I can convert this mole method into mass method as well. जैसा आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया.
कैसे करना होता है एग्जैक्टली वापस से देखें। अगर मैं मीथेन के मोलर मास की बात करूं, मीथेन का मोलर मास कितना होता है? देखिए कार्बन का हो जाएगा 12, एक हाइड्रोजन का हो गया 1 और 4 हाइड्रोजन है, तो 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाइड बाय कितने हाइड्रोजन 4, वैल्यू कितनी आनी है 16। सिंस अभी मैं मोलर मास की बात कर रहा हूं, मोलर मास की यूनिट्स क्या होता है? ग्राम्स या ग्राम्स पर मोल लिख सकते हो। सो ये जो 16 ग्राम्स है ये मीथेन का मोलर मास है, मतलब ये जो 16 ग्राम्स है ये मीथेन के 1 मोल का मास है। क्या मेरे पास एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ मीथेन यहां पे? एब्सोल्युटली। एंड वी गॉट टू नो 1 मोल ऑफ मीथेन का मास कितना होता है? 16 ग्राम्स। आई विल बी राइटिंग 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन, राइट, 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन O2, आप मुझे बताया O2 का मोलर मास कितना होता है? देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, कितने ऑक्सीजन है यहां पे 2, तो मल्टीप्लाई 2 से कर लिया, वैल्यू किसके बराबर आ गई 32, राइट। अभी मैं पर्टिकुलरली मोलर मास की बात कर रहा हूं और मोलर मास की यूनिट्स क्या होता है? ग्राम्स या ग्राम्स पर मोल। तो ये जो 32 ग्राम्स है ये किसका मोलर मास है? ये O2 का मोलर मास है। मतलब ये जो 32 ग्राम्स है क्या ये O2 के 1 मोल का मास है? एब्सोल्युटली, बिकॉज मोलर मास को डिफाइन कैसे किया जाता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मैं आपको बता रहा हूं ये जो 32 ग्राम्स है ये O2 का मोलर मास है, दैट मींस ये O2 के 1 मोल का मास है। बट क्या एक्चुअली मेरे पास 1 मोल ऑफ O2 है कि 2 मोल्स? आई हैव गॉट 2 मोल्स ऑफ O2। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम्स, तो खुद बताए 2 मोल्स ऑफ O2 का मास कितना होगा? Isn't it going to be 64 grams? यहां पर लिख रहा हूं मैं 64 grams of O2, right? अब if we talk about कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? चेक करें। देखिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12, राइट? और कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। सिमिलरली यहां पे 2 ऑक्सीजन भी है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना? 16, और कितने ऑक्सीजन? 2, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 44। अब सिंस मैं अभी मोलर मास की बात कर रहा हूं, यू गाइस नो इट कि मोलर मास की यूनिट्स क्या होते हैं? ग्राम्स, राइट? ग्राम्स या ग्राम्स पर मोल। परफेक्ट। तो ये जो 44 ग्राम्स एग्जैक्टली है, क्या ये 44 ग्राम्स इस कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास आ गया? राइट, 44 grams is the molar mass of carbon dioxide. 44 grams is the mass of 1 mole of carbon dioxide. क्या मेरे पास exactly 1 mole of carbon dioxide ही है? Absolutely. तो इस 1 mole of carbon dioxide का mass simply मैं कितना लिखूंगा? 44 grams of क्या? Of carbon dioxide. Right? Similarly, अगर आप वाटर का मोलर मास चेक करोगे, देखिए हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 एटॉमिक मास, कितने हाइड्रोजन? 2। ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन? 1, तो वैल्यू किसके बराबर आनी है? 18 के बराबर। अभी मैं पर्टिकुलरली मोलर मास की बात कर रहा हूं, जिसको एक्सप्रेस किस में किया जाता है? जिसको एक्सप्रेस ग्राम्स में किया जाता है या ग्राम्स पर मोल में किया जाता है, राइट? सो आई कैन से दिस 18 ग्राम्स इट इज द मोलर मास ऑफ वाटर, दैट मींस 18 ग्राम्स इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, राइट? बट क्या मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर है कि 2 मोल्स ऑफ वाटर? आई हैव गॉट 2 मोल्स ऑफ वाटर। अगर 1 मोल ऑफ वाटर का मास है 18 ग्राम्स, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर का मास कितना हो जाएगा? 36 ग्राम्स। आई विल बी राइटिंग 36 ग्राम्स ऑफ व्हाट? 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेटमेंट को रीड कैसे करा जाएगा? वापस से देखें। आई कैन से 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन ने 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है और एट द सेम टाइम 36 ग्राम्स ऑफ वाटर भी बनाया है। क्या मैंने ये स्टेटमेंट हर जगह पे इन टर्म्स ऑफ मास लिखा? एब्सोल्युटली, आई रोट दिस स्टेटमेंट एवरीवेयर इन टर्म्स ऑफ मास। और जब भी ऐसा एक स्टेटमेंट स्टोइशियोमेट्री में लिखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ मास, आई बी कॉलिंग दिस मेथड इन स्टोइशियोमेट्री एज द मास मेथड, राइट? पहला वाला कौन सा था? मोल मेथड, और दूसरा वाला कौन सा है? मास मेथड, राइट? परफेक्ट, आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक। सिमिलरली कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लेने जा रहे हैं, और ये जो मैं रिएक्शंस अभी लिख रहा हूं ये सारी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली आई विल बी यूजिंग दीज रिएक्शंस। मैं इन रिएक्शंस को फ्रीक्वेंटली इस चैप्टर में काम में लेने वाला हूं, राइट? What are the other reactions which you are going to remember from now onwards? What are the other reactions जिनके लिए आपको ये दो statements लिखने आने चाहिए? Let's talk about those reactions. Have a look. देखिए, मैं यहां पे ले रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट। सुना होगा सबने कैल्शियम कार्बोनेट, राइट? यस। और अब सबको पता होगा, क्लास 10th में सबने पढ़ा हुआ होता है या क्लास 9th में, जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करा जाए, जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करा जाए, ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब भी हीट अप किया जाए ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। किस में? कैल्शियम ऑक्साइड में
और साथ में क्या मिलता है? साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, राइट? जब भी आज के बाद आप कैल्शियम कार्बोनेट लोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करने से कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है, डिकंपोज हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड में। साथ में क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, राइट? अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्टोइशियोमेट्री यूज करनी होगी, कैन वी डू दैट? एब्सोल्युटली वी कैन डू दैट। सबसे पहला काम, जब भी स्टोइशियोमेट्री यूज करनी होगी, व्हाट आर वी सपोज टू डू? आर वी सपोज टू बैलेंस द रिएक्शन? एब्सोल्युटली वी आर सपोज टू बैलेंस द रिएक्शन। और ये रिएक्शन आपको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में है। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में है। इस रिएक्शन के स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट्स क्या है? 1, 1 एंड 1। दीज आर द स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट्स ऑफ योर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली, राइट? सिंस आपने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, द रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में थी, अब ये जो स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट्स आ गए, इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा? आई विल बी ट्रीटिंग देम एज मोल्स, राइट? आई विल बी ट्रीटिंग दीज स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट्स एज मोल्स। तो स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा यहां पे? आई विल बी सेइंग समथिंग लाइक दिस: 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, जब आपने 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करा, आपके पास एक तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिला और साथ में 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिला, राइट? I can say simply something like this. I can say 1 mole of calcium carbonate on heating produces 1 mole of calcium oxide, and with this 1 mole of calcium oxide we are getting 1 mole of carbon dioxide as well. चेक करें फिर से, ये स्टेटमेंट तभी पॉसिबल हुआ जब रिएक्शन आपके पास बैलेंस्ड फॉर्म में थी, जब आपके पास स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट्स की वैल्यू थी। और ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा, क्या ये सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिखा? एब्सोल्युटली ये स्टेटमेंट लिखा गया इन टर्म्स ऑफ मोल्स। एंड व्हेनेवर वी राइट सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, वी कॉल दिस मेथड इन स्टोइशियोमेट्री एज द मोल मेथड, राइट? यस। सिमिलरली आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? आप इसको मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे मास में कन्वर्ट करोगे? ध्यान से देखें। फर्स्ट थिंग, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा? सिंपल, आप इन एटॉमिक मासेस को पहले सम करो। देखिए, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40, सुना होगा सबने, 40 mu। कितने कैल्शियम है? एक ही कैल्शियम है, राइट? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? दैट इज 12 mu। कितने कार्बन? एक ही कार्बन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन? 3। जब इसको वैल्यू को सॉल्व करोगे, जब इसको सम करोगे एग्जैक्टली, ये आपको मिल जाएगा कुछ 100, राइट? ये आपको 100 के बराबर मिलेगा। सिंस मैं अभी टर्म यूज कर रहा हूं मोलर मास, मोलर मास को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? ग्राम्स में, राइट? सो कैन आई से दिस 100 grams, it is the molar mass of calcium carbonate? Absolutely. Can I say this 100 grams is the mass of 1 mole of calcium carbonate? Absolutely. क्या मैंने 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ही यहां पे लिया हुआ है? Absolutely. तो इस 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा? It is going to be simply 100 grams. I will be writing 100 grams of calcium carbonate on heating. On heating gives, ध्यान से देखिए, if you talk about calcium oxide, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? अभी मैंने बताया कैल्शियम का होता है 40, और कितने कैल्शियम यहां पे? एक ही कैल्शियम है, राइट? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और कितने ऑक्सीजन? एक ही, राइट? तो वैल्यू किसके बराबर आनी है? 56। राइट नाउ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? आई विल बी राइटिंग ग्राम्स, राइट? तो ये जो 56 ग्राम्स है, क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास है? एब्सोल्युटली। क्या ये 56 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड के 1 मोल का मास है? एब्सोल्युटली। क्या मैंने 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ही लिया हुआ है? एब्सोल्युटली। तो इस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का मास सिंपली कितना होगा? 56 ग्राम्स। आई विल बी राइटिंग 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, एज सिंपल एज दैट, राइट? सिमिलरली, अगर मैं आपसे पूछूं मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? अभी हमने देख लिया मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 44 ग्राम्स। दैट मींस मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 44 ग्राम्स। क्या मैंने 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही लिया हुआ है? एब्सोल्युटली। तो उसका मास कितना होगा? 44 ग्राम्स। साथ में क्या लिखूंगा? ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा मैंने, 100 grams of calcium carbonate on heating gives 56 grams of calcium oxide and 44 grams of carbon dioxide. ये जो स्टेटमेंट लिखा गया, ये स्टेटमेंट तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन आपके पास बैलेंस फॉर्म में होगी, जब आपके पास स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट्स की एग्जैक्ट वैल्यू होगी, राइट? और ये जो स्टेटमेंट लिखा आपने, क्या ये स्टेटमेंट आपने इन टर्म्स ऑफ मास लिखा? एब्सोल्युटली। सो आई विल बी कॉलिंग दिस मेथड इन स्टोइशियोमेट्री एज द मास मेथड, राइट?
ये भी रिएक्शन है जो आप आज के बाद याद रखोगे। कैल्शियम कार्बोनेट को जो हीटअप किया जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, ब्रेक होता है किसमें? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट। सिमिलरली कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आज के बाद आप याद रखोगे। अभी तक 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज गोइंग टू बी KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। जब इस KClO3 को हीटअप किया जाता है, डू रिमेंबर KClO3 को जब हीटअप करा जाता है, दिस साइन रिप्रेजेंट्स कि मैं KClO3 को हीटअप कर रहा हूं। मतलब मैंने कंटेनर में KClO3 लिया हुआ है, एक कंटेनर में KClO3 लिया है, एक वेसल में KClO3 लिया है, उसको हीटअप कर रहा हूं। ये KClO3 ब्रेक होगा, ये डिकम्पोज होगा। किसमें डिकम्पोज होगा? एक तो आपको KCl सॉलिड मिलेगा और साथ में यहां पे O2 गैस मिलेगी। ये रिएक्शन भी आपने याद रखनी है। KClO3 को जब हीटअप किया जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा KCl में, साथ में क्या मिलेगा? O2 गैस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस रिएक्शन के लिए भी स्टोइशियोमेट्री यूज करनी होगी तो क्या किया जाएगा? अगर इस रिएक्शन के लिए स्टोइशियोमेट्री यूज करनी होगी तो सबसे पहले आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे। क्या ये रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में है? ये रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में नहीं है। इसको सबसे पहले बैलेंस करो। दिस शुड बी 2 टाइम्स, दिस शुड बी 2 टाइम्स एंड दिस शुड बी 3 टाइम्स। क्या रिएक्शन बैलेंस होगी? एब्सोल्युटली रिएक्शन बैलेंस होगी। बैलेंस करने के बाद ये जो कोएफिशिएंट्स आपको मिल गए यहां पे, ये 2, 2 और 3, इनको ट्रीट कैसे किया जाएगा? आई विल बी ट्रीटिंग दीज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एज मोल्स, and if I treat these stoichiometric coefficients as moles, I can write a simple statement in terms of moles. Now what is that statement going to be? I will be writing 2 moles of KClO3 on heating produces 2 moles of KCl, or 2 moles of KCl के साथ you are getting some 3 moles of O2 as well, right? As simple as that. मैंने सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करा। बैलेंस करने के बाद मैंने इन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ट्रीट करा एज मोल्स, फिर उसके बाद एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा। और ये स्टेटमेंट, ये कहां से आइडिया मिला आपको? ये आइडिया तभी मिला आपको ये स्टेटमेंट लिखने का जब आपके पास रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में थी। तो मेक श्योर जब भी हम स्टोइशियोमेट्री यूज किया करेंगे क्वेश्चंस में, जो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा आपको, ठीक है, आपको सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। डू रिमेंबर दैट, राइट? तो मुझे एग्जैक्टली स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता चला कि 2 मोल्स ऑफ KClO3 अगर मैं कंटेनर में लूं, अगर ये मैंने कंटेनर लिया, अगर इस कंटेनर में मैंने 2 मोल्स लिए, किसके 2 मोल्स? KClO3 के। अगर मैं इन 2 मोल्स ऑफ KClO3 को हीटअप करूंगा, एक तो 2 मोल्स ऑफ KCl यहां से मिलेगा और साथ में 3 मोल्स किसके मिलेंगे? साथ में 3 मोल्स ऑफ O2 गैस मिलेगा। आई एम श्योर ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। एंड दिस मेथड इज व्हाट आई कॉल एज, आई विल बी कॉलिंग दिस मेथड इन स्टोइशियोमेट्री एज द मोल मेथड, राइट? सिमिलरली इसको मास में कन्वर्ट करें। देखिए, सबसे पहले अगर इसको मास में कन्वर्ट करना है, अगर स्टेटमेंट को आपको मास के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? आप मोलर मास कैलकुलेट किया करोगे, हर किसी का। यहां पे KClO3 का मोलर मास, देखिए पोटेशियम का कितना होता है? 39। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। कितने क्लोरीन है? एक ही क्लोरीन। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। जब इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आपको मिल जाएगी 122.5। सिंस मैं टर्म यूज कर रहा हूं मोलर मास को एक्सप्रेस किसमें किया जाता है? ग्राम्स में। क्या ये 122.5 grams, is this going to be the molar mass of KClO3? Absolutely. This 122.5 grams, this is going to be the mass of 1 mole of KClO3. But क्या मेरे पास 1 mole of KClO3 के 2 moles? 2 moles. अगर 1 mole of KClO3 का मास है 122.5 grams, तो 2 moles का कितना होगा? 245 grams, right? तो यहां पे सिंस मैंने 2 मोल्स ऑफ KClO3 लिए हुए, तो इन 2 मोल्स ऑफ KClO3 का मास कितना हो जाएगा? 245 ग्राम्स। आई एम राइटिंग 245 ग्राम्स ऑफ KClO3। 245 ग्राम्स ऑफ KClO3 अपॉन हीटिंग, 245 ग्राम्स ऑफ KClO3 अपॉन हीटिंग गिव्स व्हाट? लेट्स चेक दैट। देखिए, KCl का जब आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे, KCl का मोलर मास आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। पोटेशियम का होगा 39 और 1 पोटेशियम, क्लोरीन का होगा 35.5 और 1 क्लोरीन। वैल्यू कितनी आनी है? 74.5। सिंस मैं मोलर मास की बात कर रहा हूं तो यूनिट्स किसमें? ग्राम्स में, राइट? तो ये जो 74.5 ग्राम्स है, दिस इज अगेन द मोलर मास ऑफ KCl। दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ KCl। बट क्या मेरे पास 1 मोल ऑफ KCl के 2 मोल्स? 2 moles of KCl, राइट? अगर 1 मोल ऑफ KCl का मास है 74.5, तो 2 मोल्स का कितना होगा? इसी को मल्टीप्लाई 2 से करें, 2 5 are 10, 2 4 are 8, 9, 2 7 are 14, तो 149 grams is basically going to be the mass of 2 moles. It is going to be the mass of 2 moles of KCl, right? 2 moles of KCl का मास कितना होगा? 149 grams. Similarly,
अगर मैं आपसे पूछूं O2 का मोलर मास कितना होता है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, 32 ग्राम्स। 32 ग्राम्स इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2, बट क्या मेरे पास 1 मोल ऑफ O2 की 3 मोल्स ऑफ O2? आई गॉट 3 मोल्स ऑफ O2। अगर 1 मोल ऑफ O2 का मास था, अगर 1 मोल ऑफ O2 का मास था 32 ग्राम्स, तो 3 मोल्स का कितना होगा? 3 मोल्स का होगा 96 ग्राम्स। ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा, ये स्टेटमेंट आपने लिखा इन टर्म्स ऑफ मास। एवरीवेयर यू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मास, राइट? Everywhere you use the concept of mass. So I'll be calling this method in stoichiometry as the mass method. Perfect. तो ये रिएक्शन भी आप याद रखोगे आज के बाद। जब KClO3 को हीट अप किया जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है KCl में, साथ में ऑक्सीजन मिलता है, राइट? सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रहा हूं मैं, जो आज के बाद डायरेक्टली आप याद रखोगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे एक जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया CXHY। ये मीथेन हो सकता है, ये प्रोपेन हो सकता है, ये ब्यूटेन हो सकता है, कोई भी एन एन आइन हो सकता है। एक जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने यहां पे लिया CXHY। यू नो, जब भी मैं एक जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराता हूं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, हमेशा यहां के प्रोडक्ट एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और साथ में यहां पे वाटर भी मिलता है। दिस इज द जनरल रिएक्शन। जब भी आप कोई हाइड्रोकार्बन लोगे, जब भी आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे, इसकी रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन के साथ कराई जाएगी, डू यू रिमेंबर, यहां पे हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा, राइट? अब फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे इस रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्री यूज करनी है, तो सबसे पहले आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, जिसको हम कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करने का एक तरीका होता है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करने का एक तरीका होता है। कैसे बैलेंस किया जाता है इस पर्टिकुलर कंबशन रिएक्शन को? ध्यान से देखें, यहां पे कार्बन कितने प्रेजेंट है? X। ये X सीधे उठाओ, ये X यहां का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर लो। यहां पे हाइड्रोजन कितना है? Y। ये Y सीधे उठाओ और यहां पे Y डिवाइडेड बाई 2 कर लो। और ये जो O2 है, O2 के सामने सीधे लिखो X प्लस Y डिवाइड बाई 4, राइट? ये जो डिवाइड बाई 4 है, ये सिर्फ Y को, ये X को नहीं है। ये एक जनरल वे होती है बाय मींस ऑफ विच यू कैन बैलेंस अ जनरल कंबशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मैं इस हाइड्रोकार्बन की जगह यहां पे मीथेन ले रहा हूं, CH4। बेसिकली ये क्या है? C1H4। वी नो, जब भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, एक तो यहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा। दिस इज समथिंग विच यूल बी नोइंग नाउ, राइट? बिकॉज दिस इज अ कंबशन रिएक्शन। आई एम डूइंग द कंबशन ऑफ मीथेन। मैं मीथेन की कंबशन कर रहा हूं, मैं मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर रहा हूं, राइट? अब इसके बाद इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करा जाएगा? ध्यान से देखें, क्या ये जो 1 है, क्या ये एक्चुअली x की वैल्यू है? ये जो 4 है, क्या ये y की वैल्यू है? एब्सोल्युटली, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y, राइट? ये x सीधे उठाओ, यहां का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर लो। ये y सीधे उठाओ और y बाई 2 करो। y की वैल्यू कितनी? 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2। यहां पे 2 टाइम्स कर लो, राइट? यहां का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होता है? x प्लस y बाई 4। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 4। ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो यहां का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा? 2। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नाउ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहां का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यहां का 2, यहां का 1 और यहां का 2। आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। दिस इज नाउ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दिस इज द जनरल वे बाय मींस ऑफ व्हिच यू कैन बैलेंस अ जनरल कंबशन रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट? सिमिलरली एक और रिएक्शन लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। यहां पे एक और रिएक्शन लेते हैं जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखें, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह C3H8 लेता हूं, C3H8 की रिएक्शन, जिसको प्रोपेन बोलते हो आप, इसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराई जाएगी, क्या क्या मिलेगा? एक तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। आप कोई सा भी हाइड्रोकार्बन लो, कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, जब भी आप इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कराओगे, आपको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करा जाए? सेम वही तरीका जो मैंने अभी बताया। x की वैल्यू कितनी? 3। ये 3 यहां का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। y की वैल्यू कितनी? 8 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 4। तो 4 यहां का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट x प्लस y बाई 4। x की वैल्यू कितनी? 3, y की वैल्यू कितनी? 8 डिवाइड बाई 4। तो वैल्यू कितनी आनी है? 4 1 4 2 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहां पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आ गए 1 5 3 एंड 4। दीज आर द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस रिएक्शन, राइट? ठीक है, आई एम श्योर आपको आज के बाद इन टाइप ऑफ रिएक्शंस को बैलेंस करना आएगा, ठीक है? सिमिलरली एक और चीज देखते हैं। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑक्टेन C8H18।
ऑक्टेन की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ कराओगे, यहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा, राइट। एक तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे, बैलेंस करने के बाद जो मैं दो स्टेटमेंट्स आपको लिखना सिखा चुका हूं, पहला स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ मोल मेथड, दूसरा स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ मास मेथड, राइट। पहला स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ मोल मेथड, दूसरा स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ मास मेथड। आप ये दो स्टेटमेंट्स लिखोगे, राइट। आप पहले रिएक्शन को बैलेंस करोगे, फिर स्टेटमेंट लिखोगे इन टर्म्स ऑफ मोल मेथड, फिर स्टेटमेंट लिखोगे इन टर्म्स ऑफ मास मेथड, और डू टेक द पिक्चर ऑफ दैट एंड डू पोस्ट दैट पिक्चर इन द कमेंट सेक्शन। अगर कमेंट सेक्शन बंद हुआ तो यू कैन सेंड इट टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम, राइट। यस, आई विल बी डेफिनेटली चेकिंग इट वन बाय वन, ठीक है। तो मेक श्योर यू डू दैट, ठीक। इसके बाद एक और पर्टिकुलर रिएक्शन है जो आप आज के बाद याद रखोगे। आप सबने सुना होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। डू रिमेंबर, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीटअप करा जाता है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है एक तो सोडियम कार्बोनेट में, और साथ में यहां पे वाटर मिलता है, और वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। आप इस रिएक्शन को भी बैलेंस करोगे, और इस रिएक्शन के लिए भी आप वो दो स्टेटमेंट्स लिखोगे, one in terms of mole, one in terms of mass, and you can do that. I'm sure about that now, right? Similarly, एक और चीज याद रखना, ये सिर्फ मैं वो रिएक्शंस लिख रहा हूं जो फ्रीक्वेंटली मैं इस चैप्टर में काम में लूंगा, ठीक है। एंड आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर दीज सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस, राइट। डू रिमेंबर, अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह सोडियम कार्बोनेट लूं, अगर मैं इस सोडियम कार्बोनेट को हीटअप करूंगा, डू रिमेंबर, सोडियम कार्बोनेट को हीटअप करने से कुछ नहीं होता, यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। सोडियम कार्बोनेट को हीटअप करने से यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होती है, ये एक्चुअली आगे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जैक्टली पढ़ोगे, ठीक है। सो दीज वेर सम बेसिक थिंग्स विच यू मस्ट बी नोइंग बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक स्टोइशियोमेट्री। अभी मैंने एक्चुअल स्टोइशियोमेट्री स्टार्ट नहीं करी, मैंने आपको आज की क्लास में सिर्फ वो चीजें बताई जो हमें स्टोइशियोमेट्री टॉपिक में काम में आ जाएंगी। ये सारी रिएक्शंस मेक श्योर आप लिख के रखोगे, याद करोगे, और जो मैंने असाइनमेंट दिया है, जो मैंने होमवर्क दिया है, डू लेट मी नो about that assignment in the comment section, in the Telegram, Instagram, wherever you find me. Do send me the picture of that, right? ठीक है। So with this, I'm going to take a leave, और आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, right? ठीक है। कल से आपकी एग्जैक्ट क्लासेस का ड्यूरेशन रहेगा 40 मिनट्स, ठीक है। तो इसके बाद आपकी अभी फिजिक्स क्लास लगेगी, बट मेक श्योर आप ये ऑनलाइन क्लास एक्चुअली फॉलो करोगे, बिकॉज ये जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जब कुछ दिनों के बाद ऑफलाइन क्लासेस वापस से स्टार्ट हो जाएंगी, ये सब दोबारा आपको ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और एट द सेम टाइम वन मोर थिंग, जो भी मैं चीजें यहां पे पढ़ाऊंगा, अगर आपको कोई भी डाउट रहा in these things which I'll be discussing in the class, you can ping me personally on my WhatsApp. I'm providing you my WhatsApp number as well, right? 896-809-2500. You can send me your doubts, whatever doubts, kitne bhi doubts aapke honge, theek hai, you can send me your doubts on this number. I'll be personally helping you out in order to tackle with those doubts, right? theek hai, and do send me the solution of the assignment which I give in the tonight session, right? aur ek aur cheez, agar जो भी क्लास में डाउट रहता होगा, ठीक है, अगर ऐसे क्लियर नहीं हुआ तो हम सारे टीचर्स सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक यही काइट टावर में होते हैं। यू कैन कम टू अस एनी टाइम वेन एवर यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, यू कैन जस्ट लेट अस नो कि हम क्या आप लोगों को डाउट है, कुछ भी है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, राइट? डू लेट अस नो, विल बी हियर from morning to the evening and will be helping you out in clearing those doubts जब तक ऑफलाइन क्लास वापस स्टार्ट नहीं हो जाती, ठीक है। So with this, I'm going to take a leave. I'll see you guys tomorrow at the same time. Till then, you guys take care. Bye bye. God bless you all and love you all. Take care, guys. Bye.